तो रणदीप सुरजेवाला और आनंद शर्मा को आप देख रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के बाद बाहर आए हैं। हालांकि मीडिया से ये लोग घिरे हुए हैं और पी चिदम्बरम को रणदीप सुरजेवाला के साथ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मीडिया से ये सब घिरे हुए हैं और मीडिया जानना चाहता है कि आखिर इनकी क्या मुलाकात में बातचीत हुई है, इन्होंने क्या शिकायत की है, क्या गिनती की कोई बात हुई है। सुनिए पी चिदम्बरम क्या कुछ कह That is a violation of the conduct of election rules read with a circular of the Election Commission. There are precedents where such ballot papers have been rejected. The most recent precedent was in Haryana on June 11, 2016. On June 11, 2016, in the election to the Rajya Sabha, a Congress MLA's vote was rejected on the ground that the ballot paper had been seen by a person other than the authorized person. There was another precedent in 2000 in Rajasthan where an independent MLA's ballot paper was rejected on the ground it was seen by a person other than the authorized person. In Gujarat, there is ample evidence to show that 2 votes cast by Congress MLAs were seen by persons other than the authorized person. In fact, our reports are at least 2 or 3 persons have seen the ballot paper. Those 2 ballot papers went in favor of the BJP, which is why unauthorized persons of the BJP saw those ballot papers. Those 2 must be rejected. Election Commission cannot follow anything except its own precedent of June 11, 2016. Therefore, we have impressed upon the Election Commission that those 2 ballot papers must be rejected. Our reports from Gujarat are the returning officer is rightly awaiting the instructions of the Election Commission. Let me make one thing clear. The only constitutional authority is the Election Commission. Conduct and superintendence of election is vested in the Election Commission. The returning officer is only an officer appointed by the Election Commission to carry out certain acts. The ultimate decision is always the decision of the Election Commission. We have told the Election Commission, the Election Commission must take the decision. The Election Commission must reject these 2 ballot papers as it did in Haryana on June 11, 2016. These 2 ballot papers must be rejected and the counting must be completed. Why wait till the nth hour to red flag this, sir? They cast their ballot at about 9 a.m. this morning at 3:30. That's the BJP argument, line of argument, sir. It is a completely irrelevant argument. One assumes that when the counting starts, they will review the videos and reject the ballot paper. It is only when they refuse to act according to law, refuse to act according to the circular, refuse to act according to the rules, the question of bringing to the notice of Election Commission arises. One assumes Election Commission, when it reviewed the video, would have rejected it. Why should I assume they won't act according to law? It's only when they delay acting, only when they delay a decision, we bring it to the notice of the Election Commission. Sir, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों का डेलीगेशन आया था। BJP is alleging that this is because you anticipate Mr. Patel is losing in Gujarat and hence you decided to pull this out of your hat. That is an irrelevant question. Question is, are these 2 ballot papers liable to be rejected or not? If the BJP is any conscience, it will say, follow the precedent of June 11, 2016 and reject these 2 ballot papers. The question is, are these ballot papers liable to be rejected?
If they are liable to be rejected, they must be rejected and the counting must be completed. Did you come face to face with the BJP delegation? Did you come face to face with the BJP delegation? The delegation of the BJP that's inside गहलोत जी निकलने दो भैया जी। सर अभी आप लोगों की मुलाकात करके ऑन करो, एक और ऑन करके ऑन करो। हाँ, आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जी चुनाव आयोग को मिला और हमने चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर से दरख्वास्त की कि 2 ऐसे विधायक हैं गुजरात में जिन्होंने अपनी वोट अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को दिखाई। इस आधार पर रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स और चुनाव आयोग के सर्कुलर के तहत ये दोनों वोट खारिज की जाएं, क्योंकि यही नियम और कानून है। और यही जून 11, 2016 को हरियाणा में और 2000 में इसी प्रकार से राजस्थान में वोट दिखाने और वोट की सीक्रेसी लीक करने की वजह से वोट खारिज कर दी गई थी। हमने चुनाव आयोग को ये भी बताया कि संविधान के तहत केवल और केवल ये चुनाव आयोग की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, उनका दायित्व और कर्तव्य है कि वो संविधान और कानून की अनुपालना करें। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि से ज्यादा कुछ नहीं। और अगर वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए तो ये स्पष्ट है कि ये दोनों वोट्स खारिज होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ओछे हथकंडे अपनाने बंद करने चाहिए। हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया, आदरणीय गहलोत साहब ने और सब नेताओं ने, कि इन दोनों वोट्स को रिजेक्ट किया जाए, कानून की अनुपालना हो, संविधान की अनुपालना हो और संविधान के अनुरूप निर्णय हो। चुनाव आयोग ने पूरी बात सुनकर यह आश्वासन दिया है कि वो हर हालत में देश के संविधान, देश के कानून और चुनाव आयोग द्वारा जारी किए सर्कुलर और सीक्रेसी ऑफ बैलेट को वायलेट करने पर वोट खारिज किए जाने वाले सर्कुलर को लागू करेंगे। लेकिन अभी 1 घंटे पहले आप लोग आए थे, अब दोबारा जो है तुरंत आप लोग आना पड़े, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतागण अपने पदों का दुरुपयोग कर नाजायज तरीके से पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश कर रहे हैं। देश के कानून मंत्री जब आकर नाजायज प्रभाव डालने की कोशिश करें, देश के कैबिनेट मंत्री जब नाजायज प्रभाव डालने का प्रयास करें, झूठ बोलकर, मिथ्या प्रचार करके, गलत बात कहकर पूरे मामले को भटकाने का प्रयास करें, तो सच का आईना दिखाने और सच्चाई की वकालत करने के लिए कांग्रेस का ये प्रतिनिधि मंडल आया। हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि वो कानून और संविधान के अनुरूप और चुनाव आयोग के अपने सर्कुलर के अनुरूप, जिसमें सीक्रेसी ऑफ बैलेट वायलेट करने पर रिजेक्ट करने का प्रावधान है, वो उसके अनुरूप निर्णय करेंगे। बीजेपी दोबारा आई हुई है, आप जो बाहर निकले, वो कितने भी झूठ बोल लें, वो कितना मिथ्या प्रचार और षड्यंत्र करें, परंतु झूठ हारेगा गुजरात में, सच जीतेगा। बापू की धरती पर कभी भी झूठ जीत नहीं सकता। बापू की धरती पर हमेशा सत्य की जीत हुई और एक बार फिर सत्य की जीत। चुनाव आयोग से क्या बातचीत हुई है? अरुण जेटली तो आपने सुना रणदीप सुरजेवाला को, जो कि चुनाव आयोग से मिलकर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में शामिल रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कैसे वहां पर ये सारा कुछ खेल हुआ है। हमने अपनी पूरी शिकायत चुनाव आयोग को दे दी है और हमें उम्मीद है कि सच की यहां पर जीत होगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुभाष कश्यप साहब, ये जो गुजरात के राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2 विधायकों ने ऑथराइज्ड एजेंट को ना दिखाकर अपोजिशन वाले पार्टी को दिखा दिया कि हमने वोट डाला, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग यहां पर लीक हो गई, ये गलत है। यह भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 2016 में और 2000 में राजस्थान और हरियाणा में जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर इस नियम को मानते हुए उन विधायकों की वोटिंग को रद्द कर दिया गया था। यहां आपको इस केस में क्या लग रहा है? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के पास मामला है। हाँ। और इलेक्शन के सामने दोनों तरफ से तर्क रखे जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन निर्णय करेगा। ये एग्जैक्ट प्रेसिडेंट नहीं कोई है और हरियाणा राजस्थान के और इसमें अंतर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एग्जामिन करके करेगा। मेरे निजी विचार से
कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि उनका वोट रद्द होना चाहिए इस आधार पर, क्योंकि सीक्रेसी तो अफेक्ट हो जाती है। हाँ। किसी को भी अगर दिखाएं आप, हाँ। अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव दिखाएं तब भी सीक्रेसी भंग होती है। हाँ। तो बीजेपी ये कह रही है कि वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, ऑब्जर्वर थे, उस वक्त भी इन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। जब वोटिंग हो गई, बैलेट बॉक्स में चला गया, मतपत्र चला गया, वहां पर ऑब्जर्वर ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। बाद में इन लोग आपत्ति लेकर गए हैं, जो कि बेबुनियाद है। हाँ, आपत्ति उस समय करते तो रिटर्निंग ऑफिसर तय करता। हाँ, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपत्ति पहले दर्ज करनी चाहिए थी। आपत्ति दर्ज करते तो रिटर्निंग ऑफिसर वोट करना अलाउ करता नहीं करता, ये रिटर्निंग ऑफिसर को उस समय ऑथोरिटी थी। हाँ। जब बैलेट बॉक्स बंद हो गया, हाँ। वोटिंग कंप्लीट हो गया, उसके हाँ। बाद सिर्फ इलेक्शन कमीशन इस पे कर सकता है। अभी रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद फिर अदालत ही कर सकती है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वीडियो क्लिपिंग को चुनाव आयोग देखे कि कैसे वहां पर वोट डालने के बाद अपोजिशन पार्टी को दिखाया गया कि देखिए हमने आपके हक में वोट डाला है। देखिए, मेरी समझ के हिसाब से हाँ। अगर सीक्रेसी भंग होती है तो वो अपनी पार्टी के को दिखाएं तब भी भंग होती है, दूसरी पार्टी के को दिखाएं तब भी भंग होती है। तो ये तर्क तो सही नहीं है कि जी किसको दिखाया। जी इसमें आप कह रहे हैं कि अगर किसी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर सीक्रेसी ऑफ वोटिंग यहाँ पर लीक होती है, इसका उल्लंघन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष कश्यप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से इनपुट एडिटर सुकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रमन, सबसे पहले ये बताइए कि दो दफा बीजेपी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से जाकर मिला और अपनी शिकायतें रखी हैं। क्या लग रहा है अब क्या होगा, कितना वक्त और लगेगा चुनाव आयोग को नतीजा घोषित करने में? देखिए, दूसरा डेलीगेशन जब कांग्रेस का मीडिया को ब्रीफ कर रहा था, पी चिदम्बरम और रणदीप सुरजेवाला, उसी वक्त अरुण जेटली, देश के वित्त और रक्षा मंत्री, उन्होंने प्रवेश किया इलेक्शन कमीशन। दूसरी बार अरुण जेटली की अगुवाई में एक भारी भरकम डेलीगेशन बीजेपी का और केंद्र सरकार का अभी चुनाव आयोग के अंदर है। पहला डेलीगेशन जो कांग्रेस पार्टी का गया था और दूसरा डेलीगेशन जो गया था, दोनों की मांग एक ही थी कि जो दो विधायकों ने बीजेपी नेता की तरफ देखकर अपना वोट डाला है, उनका वोट इनवैलिड किया जाना चाहिए। कहीं न कहीं इन दोनों विधायकों के ऊपर वोट को इनवैलिड करने और बीजेपी की मांग है कि वोट की गिनती की जानी चाहिए। कहीं न कहीं इन दोनों विधायकों के ऊपर सारा दारोमदार टिका है, ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रेस्टीज इशू बना लिया है और बीजेपी के बड़े नेता आकर चुनाव आयोग के सामने अपनी दलील पेश कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता है चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि दोनों ही राजनीतिक दल को कन्विंस करना, क्योंकि अभी दूसरा डेलीगेशन जो अभी चुनाव आयोग से मिल रहा है और मिलने के बाद अरुण जेटली या रविशंकर प्रसाद ब्रीफ करेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग को फैसला लेना पड़ेगा कि आखिरकार वोटों की गिनती जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि अभी तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हो पाई है। जब तक चुनाव आयोग अपना फैसला नहीं देता तब तक। जी सुकेश, बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। सुबह से ही देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की भाई अहमद पटेल साहब 5वीं बार राज्यसभा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, सबकी दिलचस्पी इस बात पर थी। लेकिन अब लग रहा है कि ये पूरा जो राज्यसभा चुनाव और फिर इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत, ये क्रिकेट के आखिरी ओवर की तरह हो गया है। सब थर्ड अंपायर की तरफ देख रहा है कि फैसला क्या आता है, नो बॉल है या नहीं है, आउट है या नहीं है। क्या लग रहा है स्थिति आपको देखकर? पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट जो है वो एक लीगल बैटल में तब्दील हो चुका है। लुक एट द बैटरी ऑफ लॉयर्स। पहले अरुण जेटली जाते हैं, रविशंकर प्रसाद जाते हैं, उसके बाद पी चिदम्बरम को भेजा जाता है कि 5 सेंट्रल मिनिस्टर जा रहे हैं, आप जाइए। तो पी चिदम्बरम जाकर ब्रीफ करते हैं और जो उन्होंने कहा, उन्होंने शब्द से आकर बाहर बताया। 2 दृष्टांत दिए उन्होंने कि जब इलेक्शन कमीशन ने इस बात की नोटिस ली है कि किसी को वोट क्या दिखाया गया था, क्या वो मान्य होना चाहिए, तो फैसला खिलाफ गया था। यह भी 2016 का एग्जाम्पल है और बगल में उनके सुरजेवाला खड़े थे, सुरजेवाला की तरफ ही वो इशारा कर रहे थे। सुरजेवाला ने ही वोट दिखाकर डाला था और उनका वोट जो है वो रद्द कर दिया गया था। 2000 का उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, वो बता चुके हैं आपको, रमन भी बता चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर देखिए इसकी ग्रेविटी और इसका मैग्नीट्यूड देखिए कि एक राज्यसभा चुनाव, उस पर इतना हल्ला बोल कभी आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक सलाहकार सोनिया गांधी के
अहमद पटेल हैं जो सोनिया गांधी के संकट मोचक एकदम सामान्य में कहे जाते थे, वो खुद संकट में हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह और उनकी पूरी बैटरी लगी हुई है कि ये कॉन्टेस्ट जो है उसको इस तरीके से आप बना दें कि ऐसा लगे कि नाम लेवा नहीं है कोई कांग्रेस का, क्योंकि 2017 में गुजरात में चुनाव भी होने वाले हैं। ये कंटेस्ट, ये रिजल्ट, ये कॉन्टेस्ट डिसाइड करेगा, ये रिजल्ट डिसाइड करेगा कि हवा किस तरफ बह रही है। कुछ हद तक ये जमीन पे यही असर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अहमद पटेल जब चुनाव नहीं जीत सकते खुद अपना 57 विधायकों के होते हुए, जबकि 45 विधायक उनके चाहिए, ये पूरी कहानी बयां करेगा। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने मन बनाया है, बीजेपी अपनी बैटरी ऑफ लॉयर्स भेज रही है, जो उनके बड़े नेता भी हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से सोनिया गांधी, मुझे कहा जा रहा है कि वो एआईसीसी में इंतजार कर रही है, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, AK एंटनी सब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। इतना फैसिनेटिंग राज्यसभा चुनाव शायद हाल फिलहाल में कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि कुल मिलाकर ये पूरी लड़ाई अमित शाह बनाम अहमद पटेल, अमित शाह और पूरी उनकी जो राजनीतिक ताकत है, एक तरफ जो पूरी जो अहमद पटेल का पूरा जो अंक गणित ठीक करने का जो उनका एक पूरा तजुर्बा रहा है, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, और इसलिए ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। ये दरअसल ये बात दरअसल वहीं तक महदूद नहीं है, ये बताता है कि राज्यसभा का चुनाव इस देश में कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, कि जब नंबर्स है आपके पास, लेकिन डिफेक्शन तब भी होंगे, दल बदल तब भी होंगे, और आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं, इस पे वो बनी रहेगी। ये कहानी जो है वो दूसरी तरफ भी हमें ले जाता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर इतनी दिलचस्पी शायद ही कभी किसी को हुई होगी, और इतनी देर तक कि भाई रिजल्ट क्या आता है, इसके लिए लोगों को इंतजार करना पड़ा, और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है।